वैसे सर थैंक्स अ लॉट। आप आई कैन अंडरस्टैंड बहुत बिजी टाइम है एंड यू टुक आउट द टाइम आउट फॉर बीच में दिस। आपकी आवाज बहुत कम हो जा रही है एक्चुअली। अभी अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। अच्छा, सो आई विल कीप द हेडफोन क्लोजर टू मी। हाँ यही है, एक सेकंड सर। नेक्स्ट। या ये इसका नहीं है चार्जर। आई डाउट दिस इज नॉट है। एप्पल का दूसरे वाले का है ये, इसका नहीं है। वहाँ एक और होगा, वहाँ पे एक और चार्जर होगा। जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, अभी हो रहा है। सो वी आर लाइव नाउ सर ऑन फेसबुक। आप चार्जिंग में रख रहे हैं। डन सर, वी आर गोइंग लाइव नाउ। नहीं, इट्स ओके। जस्ट अ सेकंड, ये इज हैपनिंग। हो गया, डन। तो सर, डॉक्टर श्रीवास्तव सर, वेलकम एंड यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं परितोष केमोटी, देहरादून का एडिटोरियल हेड, एंड माय कलीग पूर्णिमा बिष्ट, शी इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट इन द पायनियर। हमने ये सोचा कि these times, social distancing and all those aspects considered, हमने सोचा कि आपसे भी ऑनलाइन इंटरेक्शन करें हम, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑल्सो। सो हमको थोड़े बहुत हम विल टॉक अबाउट कोविड एंड द चैलेंजेस दैट द डिस्ट्रिक्ट इज फेसिंग एंड हाउ यू आर टैकलिंग विद दीज चैलेंजेस, एंड आई विल आस्क माय कलीग पूर्णिमा टू स्टार्ट। So my first question is, I think it is very prominent question now. क्या challenges district administration को face करने पड़े हैं कुछ last month में और अभी भी मतलब कर रहे हैं कोविड की वजह से? सर आपको सुनाई दे रहा है? मैं आई कैन हियर यू बट आई कांट हियर पूर्णिमा। अच्छा, पूर्णिमा नहीं सुनाई दे रही। सो आई विल रिपीट हर क्वेश्चन। या शी इज बेसिकली आस्किंग कि जो चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपने पहले यानी लॉकडाउन के टाइम पे आपने और चैलेंजेस फेस किए थे, अभी अलग टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू कोविड-19। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग? see actually Dehradun recorded first COVID case on 15th of March. So राइट। we are almost 5.5 months around, when we recorded our first case, and after that the challenge is more because being a capital city, so many people are coming. So once the challenge started, because we had the first case, हमारा पहला case था, so that's why that was the time when everybody was very much has this stigma, phobia that something will happen very like something which is happened is not that good, for which everybody is ready to accept. uh, वो challenge अभी हमारा चल रहा था. Then the second was came like some particular incidents happen in Delhi, and after that so much contact tracing and everything, and we had the maximum cases for that time also. राइट। Followed by when the government started migration of stranded people. So Dehradun was one of the major hub for transit of the passenger who are coming from other district to Dehradun, and from Dehradun we were sending to the different part of Uttarakhand. So राइट। this was a transit thing, flight,
then train, by road, all channels were coming. So those were the challenges when we started. That was the time when we started quarantine centers also, because most of the quarantine centers were situated in the plain districts of Uttarakhand, where people were kept for 7 days, 14 days, and then they were sent to the hill districts. So these were the challenges. So it was a very important thing. See, the first point was to keep the morale high of the team, that they should work tirelessly 24/7. Right. We are not, see, this is a time when there is no Sunday, no Saturday, no weekend, no night, no day. बिल्कुल. So, so that was the time. We are still continuously working 24/7. So these were the challenges, and right now, so the situation of Dehradun is, if you see the cases which are coming, even then we are not contributing. Earlier we were contributing almost 50% of the cases of Uttarakhand, but right now that has come down to 20 to 21%. Active cases are also not much. But this challenge actually gave us an opportunity to look into the situations what we are having in Dehradun, strengthen your health system, strengthen your team. Right now, today is the time when our team is totally expert in handling everything. So I want to tell everyone through you that the team here in Dehradun is basically fully equipped and fully trained right now to handle the COVID situation. And we are trying our level best to get rid of this problem. Let's see what will happen in future. इससे सर there is one connected question. I understand that मैं पहले भी देखा था कि हमारा पॉजिटिविटी रेट भी, फेटेलिटी रेट भी देहरादून में कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स वाज लेस. हमारे देहरादून में सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर कंट्रोल. बट अभी रिसेंटली यानी अनलॉक 2-3 के बाद ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं. अब कहा यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट दून मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें जगह की कमी पड़ रही है. आई अंडरस्टैंड कि हमने कोविड केयर सेंटर भी बनाया महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जिसमें काफी कैपेसिटी भी है. बट अभी तक जनरल पब्लिक में ये एक देयर इज अ डाउट, एक ऐसा अवधारणा है कि भाई उधर जगह भर गई है, अभी उधर जाएंगे परेशानी होगी, मत जाओ, लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे. सो उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे जो सोचते हैं कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, या दून हॉस्पिटल नहीं जाने का, अभी उधर हाउसफुल हो गया है और हमको परेशानी होगी. देखिए ऐसा है, इसमें मैं आपके थ्रू सभी को कहना चाहूँगा. पहले तो जो केसेस बढ़ने का एक आप ट्रेंड देख रहे होंगे, पिछले 10 दिनों में केसेस थोड़े से ज़्यादा हैं. उसका एक रीज़न ये है कि कुछ हमारे यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इस समय कुछ हमारे जो काउंसलिंग वगैरह चल रही है पीजी कोर्सेज की, वो आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है ना. कुछ हमारे आर्म्ड फोर्स के लोग हैं वो आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है. इसके अलावा देहरादून पूरे उत्तराखंड के लिए और जो नियर बाई हमारा यूपी का एरिया है वहाँ के लिए सबसे बड़ा टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर है. यहाँ पर एम्स है, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, इसके अलावा हिमालयन हॉस्पिटल है, हमारा दून मेडिकल है, मैक्स है. ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो नॉन टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, और इन जगहों से जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और उनकी टेस्टिंग भी हो रही है. तो दीज आर द थिंग्स विच, जिसकी वजह से टेस्ट थोड़े आपको केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं. और आज अगर आप देखिए तो हमारे पास जैसे आज की डेट में हम 1500 से 1600 टेस्ट एक दिन में कर रहे हैं. व्हेन वी स्टार्टेड इन मार्च वी वर डूइंग ऑलमोस्ट 20 केसेस, 25 केसेस, 20 केसेस की टेस्टिंग करते थे. आज वहां से हमारी कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 7 से 8 लैब हैं देहरादून के अंदर जो टेस्टिंग्स कर रही हैं इस समय जो है हमारे कोविड को लेकर के. दूसरा, जहां तक आपने कहा कि जगह, देखिए जगह कहीं भी कम नहीं है. उसका रीजन एक ये है कि अभी हमने दून मेडिकल कॉलेज के बाद जो है हमारा एम्स दून मेडिकल कॉलेज था, इसके अलावा हमारे कोविड केयर सेंटर से अभी कुछ लोगों के, चूंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके इश्यूज हो रहे हैं. हम हेल्थ केयर किसी को डिनाई नहीं कर सकते.
तो उसके लिए फिर हमने अभी ये व्यवस्था करी है कि जो हमारा महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है वहाँ पर और हिमालयन हॉस्पिटल, इन दोनों जगहों पर भी हमने जो है बेड्स जो है रिजर्व कराए हैं कोविड के इलाज के लिए। नाउ द अदर थिंग विच आई वांट टू से थ्रू यू इज लाइक, मैं पब्लिक से कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई सिम्टम नहीं है या माइल्ड सिम्टम है, जैसे हल्का सा गले में खराश है या हल्का टेम्परेचर हो रहा है, तो ऐसे में हमारे कोविड केयर सेंटर हैं वो भी दे आर इक्विवेलेंट टू हॉस्पिटल्स ओनली। वहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वहां पे भी दवाएं दी जा रही हैं, तो आप वहां पर रहें। अननेसेसरी फोर्स नहीं करें कि हॉस्पिटल में आपको एडमिशन किया जाए, क्योंकि देखिए इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत नहीं है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, इसलिए इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जो कोविड केयर सेंटर्स में डॉक्टर होते हैं वो डेली उसको चेकअप करते हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को हमें हॉस्पिटल भेजना है तो हम उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं। बेसिकली कोविड केयर सेंटर को मैं बोलना चाहूंगा कि इज नॉट अ वेरी डिफरेंट क्वारंटीन सेंटर नहीं है वो, दैट इज एक्चुअली हॉस्पिटल ऑफ अ लोअर लेवल जहां पर आपको आईसीयू वगैरह नहीं है, तो दैट इज एक्चुअली डेजिग्नेटेड एज हॉस्पिटल। अभी हमने कोविड केयर सेंटर में 4-5 होटल्स हैं उन्हें भी बनाया है जो पेड क्वारंटीन कोविड केयर सेंटर्स होंगे, जहां पर अगर आपको कहीं कोई इश्यूज लगते हैं तो आप वहां भी रह सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट ने करी हुई हैं कोविड के प्रॉपर मिटिगेशन के लिए। ठीक सर। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि हरिद्वार में जो है उतने ही पेशेंट्स एक्चुअली आई कांट हियर द वॉइस, पूर्णिमा की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मेरे को। हेडफोन पास में रखो। अब आ रही है सर? हाँ अभी थोड़ा आई। अच्छा सर ठीक है सर, ये कहा जाए हरिद्वार में जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के वो ऑलमोस्ट उतने ही है जितने देहरादून में है, पर नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स हरिद्वार में ज्यादा है देहरादून से। सो इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस? तो क्या मतलब बहुत मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। आई जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज सम कंपैरिजन बिटवीन हरिद्वार एंड देहरादून, बट आई कैन नॉट। Yes, the number of patients in Haridwar and Dehradun are almost same. हाँ But Dehradun में containment zones अच्छा compared to एक्चुअली क्या है कि आप अगर देखेंगे देहरादून का, अगर आप ग्राफ देखें जो केसेस आते हैं या टेस्टिंग होती है तो हमारा बहुत कंसिस्टेंट रहा है कि एक लेवल पर हमने टेस्टिंग करी और एक लेवल पे हमारे केसेस आते हैं। नाउ इस वजह से हमारे यहाँ क्या है कि जो कंटेनमेंट जोन्स आते हैं वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो एक नंबर बहुत मिनिमम लेवल पे 15-20 के आसपास नंबर रहता है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दिन बहुत ज्यादा केसेस और किसी दिन 0 केसेस हो गए हों या 2 केसेस हो गए हों। ऑलमोस्ट पहले ये 70-75 के राउंड अबाउट सस्टेन करता था। राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 140-150, ऑलमोस्ट डबल है पहले का। तो देखिए हमने एक अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है जिसमें ये इट इज वेरी क्लियरली रिटन कि कंटेनमेंट जोन कब बनाए जाएंगे, लाइक जहां पर 3 से 4 केसेस हो जाएं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस आपको जो दिखते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर है, उसमें से बहुत सारे केसेस आउटसाइडर्स के हैं, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो अगर वो आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं, उनकी वजह से कम्युनिटी में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसी जगहों पर फिर हम कंटेनमेंट जोन्स नहीं बनाते। राइट। एक है सर, अब कोविड से हम जरा निकल के आ रहे हैं। एक मेन एक काफी टाइम से प्रॉब्लम है देहरादून में एनक्रोचमेंट का। आप थोड़ा और नजदीक से अब आ रहा है सर? हाँ या देहरादून में देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम एनक्रोचमेंट का, हाँ। स्पेशली रिवर बेड्स में और रिवर बेड्स के आसपास। आप एमडीडीए में भी रहे हैं, आपने उस एंगल से भी देखा है। और जनरली क्या होता है, हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट अपने साइड से भी एक्शन लेते रहती है। बट ऐसा होता है कि मान लीजिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होती है, फिर सबसाइड हो जाता है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, एलिगेशन ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, इंटरफेरेंस है, बाद में सबसाइड हो जाता है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। तो इसका कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकेगा एनक्रोचमेंट का इन देहरादून? देखिए ये देहरादून में एक्चुअली काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है जो रिवर बेड को लेकर के। बेसिकली द मेजर इशू इज रिस्पना बिंदाल, जो आप टू बी वेरी प्रिसाइज ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने भी पहले देखा।
एंड देयर इज डेफिनेटली अ सोल्यूशन। अभी मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने एक ड्राइव करी हुई है। वी आर डॉक्यूमेंटिंग ऑल द गवर्नमेंट लैंड्स, कितनी गवर्नमेंट लैंड हमारे पास अवेलेबल है और उनमें से क्या है, कितनी खाली है, कितनी इंक्रोच्ड है। और अभी आज आप देख रहे होंगे पिछले 15-20 दिनों में हमने काफ़ी ड्राइव चला करके काफ़ी लैंड को जो है वो क्लियर भी इंक्रोचमेंट से किया है। जी नाउ जो रिवर बेड में जहाँ पर लोग बसे हुए हैं वहाँ पर देखिए, सी द अदर थिंग इज कि हमारा ये मानना है कि अभी एक बहुत अच्छी योजना है, स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। और उसके तहत अभी हम एक जब एमडीडीए में रहे तब भी और अभी वर्तमान में भी एमडीडीए उसमें काफ़ी काम कर रहा है। और हमारा ये प्लान है कि डेफिनेटली इन लोगों को यहाँ से उनको रिहेबिलिटेट करके यहाँ से उनको शिफ्ट कराया जाए और उसके बाद ये पूरे रिवर बेड को क्लियर करा करके जो नदी उसकी ओरिजिनल है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अपना एक विजन है, उन्होंने एक किया है कि हमें वी हैव टू रिस्टोर रिस्पना। तो अभी उसमें प्लान रिस्पना के रिस्टोरेशन में दो चीजें हैं कि एक तो उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, नदी के अंदर पानी ले आना, उसकी वजह से उसमें प्लांटेशन करना, ग्रीनरी करना एक पार्ट है। एंड द सेकंड पार्ट इज उसका इंक्रोचमेंट वगैरह हटा करके उन लोगों को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करके वहाँ पर जो सीवरेज और ये सारी चीज़ें गंदगी जा रही हैं उनको रोक करके नदी को वापस प्रॉपर उसको ओरिजिनल शेप में लेके आना। तो इस पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और अभी नमामि गंगे में हमारे लिए ये रिस्पना और बिंदाल के लिए जो नदियों में सीधे सीवर डाला जा रहा है उसके लिए स्कीम भी अप्रूव हुई है, उस पर टेंडर हो गया, उसका काम भी अब शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली हम इसको इस प्रॉब्लम से, बिकॉज दिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, इट वाज नॉट क्रिएटेड विद इन लाइक अ ओवरनाइट प्रॉब्लम क्रिएटेड नहीं है। तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही जरूरी है, अदरवाइज वो बार बार जो पुराने समय में होता रहा है वो होगा। इसलिए वी आर वर्किंग ऑन अ लॉन्गर मतलब लॉन्ग टाइम प्रॉपर सोल्यूशन। इसमें सर एक मैं सब क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि पहले भी अटेम्प्ट्स हुए हैं। उसमें ये होता है कि मान लीजिए जो रिस्पना बिंदाल में स्लम डवेलर्स हैं, अब पहले कभी स्लम डवेलर्स जो थे दे यूज्ड टू से कि हमको ये घर भी रहने दो जो हमारा स्लम वाला है, क्योंकि सरकार ने हमको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया है, हमको ये सुविधाएं दी है, और हम जो आप फ्लैट बना रहे हैं हमारे लिए वो भी रहने दीजिए। अब वो फिर तब होता ये था कि भाई पहले से उनको समझाया नहीं है कि क्या है। अब काठ बंगला का जैसा था, एमसीडी स्पेसिफिकली एमसीडी है, बट आप अब डिस्ट्रिक्ट तो आप देख रहे हैं नहीं, इतना। देखिए ऐसा है, इसमें जो इशू है, मैंने आपको कहा आई एम टॉकिंग अबाउट रिहेबिलिटेशन मतलब यू हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर अ प्रॉपर, आपको अच्छे लाइफ जीने का मौका मिले, उसके लिए होता है। तो डेफिनेटली उसमें आप देख रहे होंगे कि अभी जो भी घर वगैरह इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जाएंगे उनको डेफिनेटली वहां से हटना पड़ेगा और जो वो उनकी पुरानी चीजें हैं वो जहाँ पर है वो उन्हें छोड़नी पड़ेंगी जहाँ इंक्रोचमेंट। राइट सर। पूर्णिमा। सर, डिस्पाइट रिपीटेड गवर्नमेंट डायरेक्शन एंड एक्शंस, अभी भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और पब्लिक में स्पिटिंग, थूकना वगैरह कर रहे हैं। तो आपके क्या व्यूज है इस बारे में और आपका क्या मैसेज है पब्लिक के लिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक? सॉरी, यू हैव टू रिपीट question. जैसे कि रेपिटेड गवर्नमेंट I don't know Purnima, I'm sorry, I am not able to listen you. नहीं, नो प्रॉब्लम सर। जैसे गवर्नमेंट इतने काफी महीनों I से think you डायरेक्शन just दे रहा close है। it little bit, no, तो I think आवाज आएगी। और पास में रहो। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है? हाँ, अभी रिलेटिवली बेटर। अच्छा, तो काफी महीनों से गवर्नमेंट जो है लगातार डायरेक्शंस दे रही है और एक्शन भी ले रही है कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, बट अभी भी मास्क नहीं पहन रहे, वायलेशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है और स्पिटिंग जो है पब्लिक में, जो कि इट कैन कॉज कोविड-19 कंटेजन। तो इस बारे में आपका क्या व्यू है और आप लोगों को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे इस रिगार्डिंग? देखिए, जो गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशंस बनाए हैं कि आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, एक्चुअली ये लोगों के खुद के बेनिफिट के लिए है, ये उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें जो हम प्रॉपर जो फाइन करते हैं, चालान कर रहे हैं, उनमें जो नंबर है, बीइंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे बड़ा अर्बन एरिया हमारे यहाँ का है देहरादून का, तो बट नेचुरल है वो पोजीशन होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चालान जो है देहरादून के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो वेदर इट इज़ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, द मैक्सिमम इज़ फ्रॉम देहरादून। बट
लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं, या गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए नहीं, ये पूर्णिमा के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये परितोष के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये सभी के बेनिफिट के लिए है। इसलिए उनको समझना पड़ेगा। और सबसे पहले जब आप मास्क उतारते हैं और मास्क उतार करके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप ये जरूर कोशिश करें, उस समय इस चीज को जरूर याद करें कि आपके घर में आपका 10 साल से कम का बच्चा भी हो सकता है, और आपके घर में 60 साल से ऊपर के आपके माता पिता भी हो सकते हैं। उनके लिए आप जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ये करके, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए हम इन्फोर्स तो कर रहे हैं, पुलिस हमारी इन्फोर्स कर रही है, लेकिन आपको भी ये समझना है कि ये आपके बेनिफिट के लिए है, आपके घर वालों के लिए बेनिफिट के लिए। घर में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोमॉर्बिड लोग होते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट के लिए है। तो इसको थोड़ा अवेयरनेस करना है, हम भी अवेयरनेस कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो लोग भी आपको और हमको इस तरीके से आपके फेसबुक से पेज से सुन रहे हैं, वो लोग भी हमारे लिए वॉलंटियर करें और लोगों में इस अवेयरनेस को बढ़ाएं। जी सर। नेक्स्ट मेरे सर होप पोर्टल जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होप पोर्टल जो है सर सॉरी सर, जो होप पोर्टल में कैसा रिस्पांस मिला है आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से? मतलब आपको लगता है ओवरकम करने में जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई है कोरोना की वजह से इन कुछ लास्ट महीनों में, वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्प कर सकता है? You are talking about hope and self-employment? यस सर। उसमें रिस्पांस कैसे मिला है आपको लोगों का? उसमें रिस्पांस कैसा रिस्पांस मिला है लोगों का? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होप पोर्टल है उसका रिस्पांस में अभी मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना 4598 रजिस्ट्रेशन, ऑलमोस्ट 4600 रजिस्ट्रेशन है। एंड the urban area is 1597 and the rural area is 3001. So this is a total registration जो हमें होप पोर्टल से मिला हुआ है। And the same we are actually giving to the department, and department are approaching to those people like horticulture के हैं, tourism से related हैं, ITI को भी हमने कुछ दिए हैं because they have certain IT related, then खादी ग्रामोद्योग है, veterinary department है, animal husbandry का, then agriculture है। So we have given to all, and they have, the maximum we have given to Skill Development Corporation for their placement. So we have a call center also, तो वहां पर कर रहे हैं। दूसरा एक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम शुरू करी है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो उसमें हम इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन दोनों से भी कर रहे हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली जो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज, तो वहां उनको जोड़ रहे हैं ना। इसके अलावा हमारे पास जो NRLM है और NULM है, और इसके अलावा जो MG नरेगा है, उसमें भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, तो कि आप वहां से किस तरीके से, अगर इफ समवन वांट्स, कई लोग ऐसे भी आए हैं जो अनस्किल्ड हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किल्ड अपनी डेवलप करें, और डेवलप करने के बाद वहां से हम कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, तो वी आर रेंडरिंग दैट सर्विस ऑल्सो। सो द रिस्पॉन्स ऑफ होप पोर्टल and PM and Mukhyamantri Swarojgar Yojana is really good, at least in Dehradun. So you are hopeful कि इससे जो economic issues जो face कर रहे हैं लोग, उनको we will be able to, the people will be able to overcome them. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल कोशिश यही है। और मेरे ख्याल से इससे, जैसे जो मैंने आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसके अंदर कोई निगेटिव लिस्ट नहीं है। तो निगेटिव लिस्ट नहीं होने का मतलब है कि व्हाट एवर एम्प्लॉयमेंट यू वांट टू डू यू कैन डू। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एंड वाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? बिकॉज अगर आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, उसके बाद आप और 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सो दैट इज द फोकस ऑफ गवर्नमेंट की एक चेन बने, और उस चेन के थ्रू जो है हम इस इशू को जो कोविड के लॉकडाउन की वजह से आया है, उसको हम एड्रेस कर पाए। जी सर, अब कोई हमारे मित्र लोग अब कोविड से रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे हैं, वो तो मैं आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट। एक ये इशू है, पहले भी था, अभी रिसेंटली तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू कर दी, बोल रहे एंट्री पॉइंट जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के,
उधर देर इज सम इनकॉन्ग्रुएंसी इन द सेंस के कहीं अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहे हैं, कहीं 50 लोग आ रहे हैं खाली। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, मेरे को भी कुछ लोगों ने कहा कि हरिद्वार के साइड से अगर आप देहरादून में आते हैं तो ज्यादा इजीली घुस सकते हैं, आशा रोडी से आएंगे तो उधर ज्यादा चेकिंग्स होती है। तो अभी तो स्टेटस क्या है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में घुसने के लिए, क्या है एक्चुअली वो अभी? आशा रोड़ी और हरिद्वार साइड का इशू नहीं है एक्चुअली। जी। जब आप हरिद्वार साइड से आते हैं तो हमारा बॉर्डर हरिद्वार में पड़ता है, जी। देहरादून इज नॉट अ बॉर्डर। सो राइट। सो वो नारसन बॉर्डर पर जो हो रहा होगा वो हरिद्वार को लोग समझते होंगे। ठीक। आशा रोड़ी साइड क्या है कि यूपी से हमारा बॉर्डर आशा रोड़ी है, तो मैक्सिमम इस वजह से लोगों को लगता है कि वहां पर चेकिंग हो रही है, या जब आप कुल्हाल साइड से आते हैं तो वहां पे भी चेकिंग होती है। नाउ क्या है कि देखिए, ये जो मेरा ये कहना है कि जो भी चेकिंग हो रही है आपको वहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, वो आप सभी के बेनिफिट के लिए, हम सभी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि हम वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करते हैं, उसे एंटर करते हैं, जिससे हमें पता रहे कि आप आ चुके हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। कल को अगर किसी को कोविड पॉजिटिविटी की सिचुएशन होती है तो देन वी कैन ट्रेस द कॉन्टैक्ट, वी कैन ट्रेस द पर्सन। तो ये है। और उसके अलावा हम ये भी उससे देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो जो आपका क्वारंटीन पीरियड है, अगर आप होम क्वारंटीन के लिए इंटाइटल्ड हैं तो आप उस होम क्वारंटीन से आप बार बार बाहर उसको जंप नहीं करें। और यही वजह है कि हम लोगों ने, अगर आप कंपेरेटिवली देखें अदर पार्ट से, तो द पोजीशन ऑफ स्टेट इज बेटर। ओके। Sir, you are PO of BFCL. So what are your priorities? देहरादून एज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आप PO हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं अभी? देखिए, प्रायोरिटी एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी इज डिफरेंट, बट द शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी तो अभी यही है कि कोविड को हम किस तरीके से कंटेन और कर पाएं। दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी जब तक कोविड चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी में डेफिनेटली आई वांट टू सी द सिटी वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द कंट्री, कि हम उसमें, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे काम है हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बेसिकली मेनली स्मार्ट सिटी के थ्रू करे जा रहे हैं। और उसके बाद एक हम जो अपना कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान के तहत इसको किया जाए, सिटी के डीकंजेशन का, सिटी के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का एक प्लान बने। उसके अलावा अगर आप देखें तो एज ए डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूं देहरादून के अंदर, तो देहरादून के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे हमारे यहाँ एक आप कहें कि हमारे यहाँ अगर टूरिज्म को देखें तो द मैक्सिमम टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मसूरी, लेकिन अभी हमारा जो चक्राता हिल का एरिया है वो भी बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। हमारा लाखा मंडल का एरिया है, वहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। वी हैव ऋषिकेश विच इज़ योगा कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो उसका भी हमें बेनिफिट है। तो टूरिस्ट में भी, मतलब आई जस्ट वांट टू सी कि district has lot of potential, we have to harness all those, but meanwhile the most important thing is to uplift the face of city, because is everybody comes here। स्टेट का भी एक तरीके से फेस है यहाँ पर। लोग, बहुत सारे लोग जो बाहर से, अदर गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, फॉरेन से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरीबडी कम्स टू देहरादून। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक अच्छा अपलिफ्टमेंट प्लान हो और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। इसमें सर ये है स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, एक तो ये जो आपने पार्शली एड्रेस कर दिया कि लॉकडाउन से स्मार्ट सिटी के काम पे कितना असर पड़ा, और दूसरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जब स्मार्ट सिटी लॉन्च हो रहा था तब भी और अभी भी काफी लोग का ये कहना है कि स्मार्ट सिटी तो भाई देहरादून सिटी में भी आप देखें तो लिमिटेड एरिया में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, अपार्ट फ्रॉम सम एस्पेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो, और कोर एरियाज में जैसे ड्रेनेज का सिस्टम और भी आप परेड ग्राउंड पलटन बाजार में जो कर रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं उसके अलावा देहरादून शहर जो है उसको स्मार्ट सिटी का क्या फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल एरियाज आउट ऑफ द कोर प्रोजेक्ट एरिया, मान लीजिए सबर्बन एरियाज हैं जो, उधर स्मार्ट सिटी से क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जो स्मार्ट सिटी का एक ये है कि स्मार्ट सिटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक एरिया को, आपको एक पर्टिकुलर एरिया, नॉट द इंटायर सिटी, यू विल टेक इन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान, एंड द रेस्ट विल बी इन पैन सिटी। पैन सिटी में यू कैन इम्प्लीमेंट आईटी इनिशिएटिव्स। तो वो आईटी इनिशिएटिव्स में हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, तो डेफिनेटली द सर्विस डिलीवरी विल इम्प्रूव इन सिटी। इसके अलावा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट है, तो आपकी बार बार जो सड़कें खुदती हैं उस चीज़ को आपको
उससे निजात मिलेगी जब ये सारा प्रॉपर हो जाएगा। तार लटकते रहते हैं, वो सारे अंदर जाएंगे तो एक फेस अपलिफ्टमेंट की बात है। जी सिटी को एक अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा हमारा पलटन परेड ग्राउंड का एक एरिया है जो ग्रीन एरिया में डेवलप होगा, तो वो एक अच्छा एरिया हमें मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटायर सिटी के लिए बात करें तो अभी लास्ट ईयर हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल एग्री किया था एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट का स्मार्ट रोड कंसेप्ट को पूरे सिटी के अंदर डालने का। हाँ वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। नाउ द बैंक से लोनिंग का जो इशू है वो कोविड की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है। तो वो जैसे ही आएगा तो डेफिनेटली एक उससे इम्प्लीमेंटेशन से एक इशू टैकल होगा। अगर आप वो देखें एक कि हमने जो सिटी स्मार्ट सिटी में जैसे हम सीवर लाइन ले कर रहे हैं, तो सीवर लाइन को ले करने की एक सबसे बड़ी बात आप देख रहे होंगे अभी चूंकि बारिश हो रही तो उसकी वजह से रिपेयर वर्क में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। बट हमने सीवर लाइन जो डाली है उसमें हमने कभी किसी रोड को क्लोज नहीं किया है। जी आप देख रहे होंगे ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से हम उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े। तो हाँ इस टाइप के एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के कामों में, तो आई थिंक डेफिनेटली सिटी को उससे काफी बेनिफिट होगा। बट यस, आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को अगले 1-1.25 साल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे तो लोगों को दिक्कत थोड़ी असुविधा होगी। उसके लिए आपको हम लोगों के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, और हम डेफिनेटली, और देहरादून में अभी भी जितने भी काम इम्प्लीमेंट हुए लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, तो भी एक्सपेक्ट की और ये कोऑपरेशन अच्छा होगा। एक इसमें सर आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि पूरे देहरादून सिटी में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्मार्ट रोड्स। पैन यस जो सिटी आप यानी पूरा यस देहरादून शहर में स्मार्ट रोड्स में मल्टी यूटिलिटी डक्ट हो जाएगा। इसमें फिर ये है कि सर जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स है उनकी पहले से भी बात चल रही है कि अंडरग्राउंडिंग कर दिया जाए उनको पूरे हाँ। शहर में, तो इसका ये भी इंक्लूड हो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएंगे सब पावर केबल्स। बिल्कुल, जो आपकी मेजर रोड्स हैं जैसे पूरी राजपुर रोड, पूरी जो आपकी प्रेम नगर तक जो चक्राता रोड है, शिमला बाईपास रोड है, हरिद्वार बाईपास रोड है, सहारनपुर रोड पूरी आशा रोड़ी तक, तो इस टाइप की जो हमारी रोड्स हैं ये सारी डेफिनेटली स्मार्ट रोड में कन्वर्ट होंगी। एंड मैं आपको बताऊंगा स्टेट गवर्नमेंट के अपने प्रयासों से देहरादून स्मार्ट सिटी पहली स्मार्ट सिटी है जिसे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट मिला है। तो डेफिनेटली ये सारे जो रोड्स पर आपके जो ओवरहेड वायर्स हैं, केबल्स, जो डाटा केबल्स जा रहे हैं, वो सारे हैंग हो गए। हेलो, आप हैंग हो गए सर। फोन हमको ही नहीं दिख रहा। हेलो, फोन दो फोन। अच्छा कट गए अभी। अभी हम देखते हैं सम टेक्निकल इशू। लगाओ लगाओ, मैसेज दो दो। वो हो गया हाँ। अभी वो कुछ टेक्निकल इश्यूज है, अभी रिजॉल्व कर रहे हैं। या हाँ सर, जरा टेक्निकल हिच हो गया था। हाँ जी हाँ
सो आप स्मार्ट रोड्स के बारे में बता रहे थे कि जो मेजर रोड्स है वो हो जाएंगी इसमें। बिल्कुल। फिर हालांकि अभी इट माइट स्टिल सीम हाइपोथेटिकल, बट क्योंकि ऐसा है कि मेन रोड्स जितनी भी आपने रोड्स मेंशन की बेसिकली उसमें ट्रैफिक होता है उसमें, बट रेसिडेंशियल एरियाज में भी कैन वी होप कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा देखिए अंडर एज ऑफ नाउ इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वी आर मेकिंग ऑल मेजर रोड्स स्मार्ट रोड। सो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तो नहीं, बट डेफिनेटली हो सकता है कि लेटर ऑन द कंसर्न डिपार्टमेंट मे कम अप विथ सम प्रपोजल रिगार्डिंग दिस। राइट राइट। पूर्णिमा, अरे वो हेडफोन। Citizens are concerned that the population pressure and demand for urban facilitation continues to take a toll on the environment in Dehradun. So how will this be tackled? कि जो लगातार population pressure है, वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर, आई आस्क। प्रॉब्लम ये हो रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर, अर्बनाइजेशन का डिमांड देहरादून में हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंसर्न ये है कि अब ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सिटी टू रिमेन सेम, बट कंसर्न सब सिटीजन्स का ये है कि एनवायरनमेंट जो है डैमेज हो रहा है, अर्बन ग्रीनरी खत्म हो रही है, ओपन स्पेसेस खत्म हो रही हैं। तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पुराना वाला देहरादून खत्म हो गया, देहरादून का कैरेक्टर खत्म हो गया, हरियाली खत्म हो गई, सब जगह घर ही घर बन रहे हैं अभी। सो क्या है, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाओ, कुछ और ऑप्शंस कोई बोलते हैं, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन इस पे? क्या कुछ के एनवायरनमेंट को भी कंजर्व किया जाए और डेवलपमेंट भी हो सके? देखिए देहरादून के साथ डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन प्रेशर है, अर्बनाइजेशन हैफाजत थोड़ा है, और इस वजह से जब अभी आई थिंक द मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पर काम कर रही है कि जो हमारा मास्टर प्लान है वो एक ब्रॉडर लेवल का मास्टर प्लान बने, और जिसमें हम जो कुछ इसके अर्बन जिसको सैटेलाइट टाउन्स कहते हैं उनमें कुछ डेवलपमेंट किया जाए। बीच में गवर्नमेंट ने वर्टिकल जाने के प्रपोजल्स को ओके किया, जिससे कि नीचे के लेवल पे हम डीकंजेस्ट करके चीज़ों को ग्रीनरी और ये सारी चीज़ें बढ़ा पाएँ। तो इस पर डेफिनेटली डिस्कशंस हो रहे हैं, और द प्लानिंग जो अर्बन प्लानर्स हैं सिटी के, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी बोथ आर वर्किंग ऑन इट। और मुझे लगता है कि जैसे हाई राइज के लिए भी कुछ बेस्ड ऑन द सॉइल कंडीशन एंड इन्वेस्टिगेशन सॉइल की जो होती है यू कैन गो। तो अल्टीमेटली जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि आप उसको एक बहुत सिटी को डीकंजेस्ट करके एक ट्रांसपोर्टेशन का बेटर प्लान करके करें, जिससे लोग बाहर की तरफ रहें और सिटी के अंदर वर्क करने के लिए आएँ और उसके बाद फिर वापस चले जाएं। देन इस सारे अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कशंस हो रहे हैं, और डेफिनेटली आई थिंक सोल्यूशन जल्दी निकल के आएगा। इसमें सर इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस और हैं। एक तो ये है कि ओपन स्पेसेस जो है स्मार्ट सिटी में देयर इज प्रोविजन, हम परेड डेवलप कर रहे हैं परेड ग्राउंड को मिक्स करके, बट ओपन स्पेसेस रही है। एक तो उस इशू को कैसे एड्रेस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि स्मार्ट सिटी का अभी आपने जो मीटिंग लिया उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है साइकिलिंग को लेके, तो हम जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बात किया, इफ मोर पीपल यूज साइकिल्स उससे शहर को भी फर्क पड़ सकता है, लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। सो आर देयर एनी कॉन्क्रीट प्लान्स टू एनकरेज ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिलिंग, पेडेस्ट्रियन लोग के लिए भी फुटपाथ्स और अच्छे करने का कोई प्लानिंग या कोई स्कोप है? देखिए जो हमारा स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड का प्रपोजल है उसमें दैट हैज़ अ वेरी गुड पेडेस्ट्रियन पाथवेज। सो पैदल चलने के लिए उससे इंकरेजमेंट होगा। और जो साइकिल का हमारा प्रपोजल है दैट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चैलेंज है कि कौन सिटी कितना इसको कर पाती है। तो उसमें दैट इज़ अ चैलेंज। सो वी आर प्रमोटिंग साइकिलिंग इन अ बिग वे कि आप इसको करें। और देन अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अभी हम ग्रीन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस 30 इलेक्ट्रिक बसेस परचेज हो रही हैं, तो उन 30 इलेक्ट्रिक बसेस से भी एक
मैसेज जाएगा और फिर उसको अगर उसकी सक्सेस और अच्छी होती है तो वी विल इनकॉर्पोरेट मोर, जिससे कि एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ग्रीन, देन साइकिल्स एंड पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्पेसेस। सो इन तीनों पर ही हम स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर ये होता है तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट सिटी के अंदर आएगा। राइट। अब सर एक है, कंटेंशियस तो नहीं बोलूंगा, बट एक काफी ये होता है, लोग बोलते हैं लैंड माफिया। लैंड माफिया के बारे में बहुत बोला जाता है, लैंड माफिया, बिल्डर माफिया, जमीन खुर्द-बुर्द हो रही है। आपने अभी आपने पहले भी बोला, अब रिसेंटली आपने डोईवाला में भी कराया था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम जमीन थी, somebody was farming on that, you got the encroachment removed। बट ऐसा कहीं सिटीजन्स जो कंसर्न्ड हैं, उनका एक एलिगेशन हमको रिसेंटली भी लोग बोलते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जूनियर स्टाफ होता है, दे आइदर मिस इन्फॉर्म यू, या वो जानकारी छुपाते हैं जिससे कि आपको जानकारी पूरी नहीं रहती, यानी रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर केसेस लैंड माफिया जो जिसको हम बोलते हैं। नहीं देखिए, एक्चुअली एलिगेशन लगता है जी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पूरा एक ही चैनल नहीं होता है इंफॉर्मेशन का जिससे इंफॉर्मेशन आ रही हो, इस वजह से किसी ने उस चैनल में इंफॉर्मेशन दबा दी या किसी ने वो इंफॉर्मेशन छिपा ली, ऐसा नहीं होता है। एक डिफरेंट पूरा डिटेल चैनल होता है जिस चैनल के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन आती है। और आप देख रहे होंगे कि इसी वजह से अभी हमने ये कहा है कि एक रजिस्टर बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें कि गवर्नमेंट की सारी लैंड्स को मेंशन किया जाए, जिससे हमें ये पता चल सके कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी ऐसी लैंड्स हैं, और उसमें फिर ये भी मेंशन किया जाए कितनी ऐसी लैंड है जो क्लीन है और कितनी ऐसी लैंड है जो इंक्रोज्ड है, इस जिससे कि हम एक्शन ले सकें। अगर इस तरीके का एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर हम मटेरियलाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद जो ये वाली प्रॉब्लम है कि किसी ने बताया और किसी ने नहीं बताया, वो जो अप्रहेंशन है वो भी खत्म हो जाते हैं। इसमें जो डिजिटल मोड है, इज दैट बीइंग हेल्पफुल? क्योंकि सीएम भी बोल रहे हैं, आप भी ट्राई कर रहे हैं थ्रू वेरियस मींस, तो इज देयर एनी वे के सिटीजन्स लोग भी इन अ वे के डायरेक्टली आप पढ़ ले, मान लीजिए ऑनलाइन कहीं आपको बता दे, उनका शिकायत हो कोई, सो लैंड रिलेटेड या और कोई इशू, डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन? नहीं बिल्कुल है। देखिए क्या होता है कि आप क्या हमारे आपको ये पता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट की सीएम हेल्पलाइन है, जी जिसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और वो सीधे जिस डिपार्टमेंट की होती है वो सीधे हमारे पास आती है, जी। और हम वहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ से भी पता चलती हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ों को डाल सकते हैं। और डेफिनेटली जो देखिए अभी आप कलेक्ट्रेट को देखें तो हमारा जो देहरादून का कलेक्ट्रेट है वो अब ई ऑफिस हमारे यहाँ चलता है, दैट इज ई कलेक्ट्रेट। हमारी वो ऑफिस में फाइलें आनी बंद हो गई हैं। तो एक अच्छा। बेटर ट्रैक भी होता है पूरी इंफॉर्मेशन का कि जो भी चीज़ें आपने किसी को ऑर्डर करी थी वो हुई या नहीं हुई, उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन दिस। राइट। एक सर था, वापस लैंड रिलेटेड है, लास्ट कैबिनेट मीटिंग में एक डिसीजन लिया था टू सिंप्लीफाई यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर अदर पर्पसेस, रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया। तो इसमें जो देहरादून का जो बोलते हैं पहले कि भाई ओपन स्पेसेस, बासमती के खेत होते थे, सबर्ब्स में अभी भी ओपन स्पेसेस है, डू यू थिंक इसको हम सरमाउंट कर सकेंगे कि फिर बाद में जहां अभी ओपन स्पेसेस है उधर भी भीड़ भाड़ हो जाएगा वापस? नहीं देखिए, एक्चुअली आप किसी भी डिसीजन को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली ज्वाइंट ऑर्गेनिक लिंक बिटवीन वन इशू टू द अदर इशू। तो इस वजह से उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर चीज करने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए हमको हर चीज़ में एक हार्मनी बनानी होती है कि हम किस तरीके से करें कि जो एग्रीकल्चर है वो भी सस्टेन करे, हमारी पॉपुलेशन भी सस्टेन करे, सारी चीज़ें हम दोनों कर पाएँ। तो आई थिंक उसको लेकर के आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी इशू इन दैट। अभी आपको नहीं लगता वो, अभी अब फ्यूचर में देखते हैं सर। तो टू सरमाइज सर, जो आपका हमसे कॉन्वर्सेशन हुआ, आप यू आर सेइंग कोविड को लेके देयर इज नो कॉज फॉर पैनिक, बेसिक प्रिकॉशंस एवरीबॉडी शुड ऑब्जर्व, एंड बाकी जो भी इश्यूज हैं दे कैन कॉन्टैक्ट यू ऑल्सो ऑनलाइन एंड सीएम हेल्पलाइन के थ्रू। श्योर सर थैंक्स अ लॉट देन सर, थैंक्स अ थैंक यू लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक्स ओके सर, नमस्कार। थैंक यू। ओके।